Esteemed Chief Guest, Shri Thagi Ram Gogoi, respected Principal Sir, my dear colleagues, and my beloved students. Today we are celebrating our 75th Independence Day, and this has resulted due to the sacrifices of our martyrs, both known and unknown, from all walks of life. On these occasions of great pride and honor, I, on behalf of the Delhi Public School family, takes the immense pleasure to wish you, at the onset, a happy Independence Day. From struggle to freedom, from freedom to progress, India is moving forward, celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav this year to commemorate 75 years of independence of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. So today, let's feel the freedom from our body, mind, and soul. And here we stand today to celebrate the 75th Independence Day of our motherland. Despite the limitations in the context of the unprecedented times, every one of us stands united today under one flag, making the day a festive one in our school premises. May I now request our esteemed Chief Guest, Shri Thagi Ram Gogoi, to unfurl the national flag. I now request Principal Sir to escort Sir. Let's raise our voices in unison and pay tribute to our motherland by singing the national anthem. An honorary flying officer on 26 January 1997. He is also the proud father of Kargil Martyr, Captain Jintu Gogoi, whom the nation honored with the Veer Chakra, Veer Silarai Bota 2007 and Mahavir Lachit Borphukan Award in 2014. To me to be the chief guest for today's occasion in this school. As Indians, we feel proud to see our country reach its 75th year with all its ups and downs. Our freedom fighters, known and unknown, have sacrificed their lives for us to enjoy this freedom. As mentioned by our Honorable President, Shri Ramnath Kovind, in the speeches yesterday evening, that we have reasons to be proud of the considerable distance we have traveled till now. The pandemic period has set a Desh
রাঙলিতে যতে উঠিল বহু সপোন আশা ত্যাগৰে কত জীৱনী বুৰঞ্জীৰে ভাষা সহিব নোৱাৰা ব্যথা দেশ পৱনেৰা জ্বলিছে অগণি বুকুতাৰ নখমো যাতনা জাতিৰেও ভেটিৰেও জীৱন দি নৈ পাৰৰ ডেকামি অস্ত্ৰ ধৰি লাচিতৰে पहचान तो बस इतनी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, मुल्क का हर जर्रा हमारा, मुल्क का हर जर्रा हमारा
और रक्त का हर कतरा हिंदुस्तानी है, हर कतरा हिंदुस्तानी है। सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभा में उपस्थित अतिथि महोदय, समस्त गणमान्य और विद्यार्थियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक आजाद मुल्क की धरती पर खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस जैसे महान अवसर पर बोलने का गौरव प्राप्त करना, यह अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात है। और आज इस मंच पर खड़े होकर सभा को संबोधित करने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इससे मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली और गर्वित महसूस कर रहा हूं। सभा में उपस्थित समस्त गणमान्य और विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आकर्षण और सम्मोहन की अद्भुत और जादुई शक्ति है, जो हमें अपनी ओर खींचती है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे खास बनाती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए जगत का प्रत्येक जीव आतुर है? धरती का विशालकाय जीव हाथी से लेकर चींटी तक उसे पाना चाहते हैं। जिसके बिना जीवन नहीं है, जिसके बिना जीवन मूल्यहीन और निरर्थक है, जीवन उद्देश्यहीन और दिशाहीन है। हमने से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वह शब्द या वस्तु शायद प्रेम, ज्ञान अथवा लक्ष्य होगा, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। बेड़ियों में जकड़ी प्रेम, ज्ञान अथवा लक्ष्य का कोई मूल्य नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि एक गुलाम ना तो किसी से प्रेम कर सकता है, ना ही उसका ज्ञान उसका या दूसरों का भला कर सकता है, और ना ही उसके पास अपना कोई लक्ष्य होता है। तो फिर क्या है? क्या है वो शब्द? मेरे विचार से वो शब्द है आजादी। आजादी वो शब्द है जिसने हजारों लाखों वर्षों से कईयों को सम्मोहित किया है, आकर्षित किया है। इस शब्द में प्रेम व सम्मोहन शक्ति के आगे कईयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कईयों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है, कईयों ने अपना संपूर्ण जीवन ही बलिदान कर दिया है। इस शब्द में वह अद्भुत शक्ति है, और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस शब्द में छिपी अद्भुत क्षमता, सम्मोहन शक्ति और आकर्षण को हम में से कोई भी अस्वीकार या नकार नहीं सकता है। तो ऐसा क्या है इस शब्द में जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे पाने के लिए हम अपने प्राण तक देने को तैयार हैं? शक्ति। जी हां, शक्ति। शक्ति विचारों की शक्ति, आजादी की शक्ति, जीवन जीने की शक्ति, खुद को पहचानने की, कुछ कर गुजरने की हर प्रकार की शक्ति, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक शक्ति इस शब्द में निहित है। ज्ञान की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, एकजुट करने की शक्ति, शक्ति कबूतरों को शिकारी के जाल से और हमें 200 साल की गुलामी की मोटी बेड़ियों से आजाद करने की। कई लोग स्वतंत्रता और आजादी को एक ही मान लेते हैं, वे इसके बीच के अंतर को समझ नहीं पाते। स्वतंत्रता और आजादी के बीच एक पतली रेखा है जो दोनों को अलग करती है। आजादी या मुक्ति किसी बाहरी शक्ति जिसने हमें अपने स्वार्थ अथवा शोषण के उद्देश्य से बांध रखा है, उससे मिलती है। लेकिन स्वतंत्र होने पर हम अपनी ही आजादी की एक तय सीमा के अनुकूल व्यवहार करते हैं, यानी कि हम पूर्णतः मुक्त नहीं हैं। मुक्त होकर भी स्वयं को स्व अनुशासन के बंधन में बांधना ही स्वतंत्रता है। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य है। हमारे देश में कौशल और प्रतिभावान युवकों की कमी नहीं है। आवश्यकता है केवल आगे आकर युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाने की। कई युवाओं के मन में यह गलत धारणा बन चुकी है कि सक्रियता से तात्पर्य सेना या राजनीति में जाने से है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की सेवा के लिए आपको सीमा पर जाकर अपने हाथों में ना तो बंदूक उठाने की आवश्यकता है, ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की। आवश्यकता है तो मात्र जागरूक होने की। देश प्रेम और सेवा भाव से प्रेरित होकर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अंत में इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का फक्र है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद।